Hello students. So myself Dr. Sandeep Singh from KMV Jalandhar, and from today onwards I will be taking your biology classes. So let's start from the beginning, that is chapter 1, reproduction in organisms. Today I am going to take a brief account of this reproduction. So let's start. So as you have read in previous classes, that reproduction, it is a biological process in which an organism give rise to young ones, or also known as offsprings, which are similar to itself. For example, means what is a reproduction? So reproduction है क्या actually में? So it is a biological process जिसमें कि क्या है कि एक parent body और एक organism it give rise to new young ones or daughter cells or offsprings which are similar to itself. So the offsprings, they grow, mature, and in turn produce new offsprings. So there is a cycle of birth, growth, and death. So what is the significance of this phenomenon? Means why plants they require this phenomenon? So it is significant in the continuity of species, generation after generation. तो मीन्स फ़ायदा क्या है इसका, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, किस लिए चाहिए रिप्रोडक्शन प्लांट को? सो जैसे कि प्लांट का क्या एक साइकिल चलता है कि उसने वो पैदा हुआ है, बर्थ, देन ग्रो करेगा और उसके बाद फिर डेथ. सो बिटवीन दिस पीरियड, बिटवीन दिस साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, प्लांट हैज़ टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज. क्या वो स्पीसीज ने कंटिन्यूशन में रहना है तो वो कैसे रहेगी कंटिन्यूशन में? वो तभी रहेंगे अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स. सिमिलरली जो नए ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या करेंगे? दे अगेन grow and give rise to other organism, means other offsprings. So it is necessary from unicellular organisms to much complex multicellular organisms. So for example, the unicellular organisms, they reproduce by simple processes like binary fission or formation of spores. For example, in case of amoeba, it divides, a parent body divides by binary fission into two daughter cells, which are exactly equal to which are exactly alike parent body. In case of fungi reproduce by formation of spores, either through asexual reproduction or through sexual reproduction. In case of plants, they produce seeds by sexual reproduction, and by asexual reproduction, they produce new offsprings through vegetative propagation. In case of birds, they lay eggs. So for similarly, like birds, there are many reptiles or other animals, with the exception of mammals, they lay eggs from which new offsprings they take birth. And in case of mammals, mammals give rise to babies or young ones. So what is the necessity of reproduction? So it is vital in the process of continuity of species. Means कि किस लिए जरूरी है? For the continuation of species. कि as a result it sustains a balance in the ecosystem among different biotic components precisely. For example, अब एक ecosystem है तो उसमें क्या है कि बड़े सारे biotic components हैं, बड़े सारे living organisms हैं. तो अगर सारे living organisms reproduce करते रहेंगे तभी उसमें balance रहेगा. ठीक है? So for continuity of species and to sustain a balance in ecosystem, reproduction is vital. अगर हम बात करें कि इसका बुरा असर क्या होगा कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं? सो विदाउट रिप्रोडक्शन द लाइफ दैट इज थ्राइविंग नाउ टू वुड सीज. सपोज कि आज क्या है, जो भी लाइफ है, जो भी स्पीशीज हैं, वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं. ठीक है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एनी न्यू ऑफस्प्रिंग्स. तो उससे क्या होगा, जो भी लाइफ है अभी वो वहाँ क्या है, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी. देयर वुड बी नो फ्यूचर जनरेशंस. सो विदाउट रिप्रोडक्शन जो लाइफ है दैट विल cease to exist. So reproduction also facilitates evolution. अब उससे क्या कि रिप्रोडक्शन से एवोल्यूशन भी आता है ड्यू टू वेरिएशंस अराइजिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू द इंटरमिंगलिंग ऑफ स्पीशीज. तो ये हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन. सो रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन टू मोड्स डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स. तो रिप्रोडक्शन क्या है, दो तरीके से हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल दो तरह की है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी. मीन्स ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ और पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट होंगे. अब जो प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल ही नहीं होंगे बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज होंगी अपने पेरेंट्स की.
because in this process a single parent divides itself to reproduce into offsprings. इसमें क्या है कि जो एक पेरेंट है वो क्या है कि अपने आप को डिवाइड करता है न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाने में. अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फिशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज कॉमन अमंग, अब जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, यीस्ट सेल्स एटसेट्रा. अब इसमें क्या है कि जो अमीबा एंड बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. अब जो हाइड्रा और यीस्ट सेल्स हैं दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. Few plant species like ginger, potatoes, sugarcane, agave, bryophyllum, they also reproduce through vegetative propagation. कुछ animal species हैं like starfish, blackworms, etc. They also produce through fragmentation. So means between asexual reproduction there are many other processes के like कई तरह की है asexual reproduction. By budding है, by binary fission है, by vegetative propagation है और by fragmentation है. अब जैसे देखें in case of bacteria or like we have said about amoeba, तो उसमें क्या है कि एक पेरेंट बॉडी क्या डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. तो इसमें क्या कि एक ही पेरेंट बॉडी दो आइडेंटिकल ट्विंस में चेंज हो जाती है. सो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. इन केस ऑफ बडिंग लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, तो उसमें क्या है कि पेरेंट बॉडी क्या है एक बर्ड प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद फिर वो क्या है डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट. तो वो भी क्या होगा एग्जैक्टली पेरेंट बॉडी जैसा होगा. लाइक फ्रेगमेंटेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्लैट वर्म्स, लाइक कुछ वर्म्स हैं जो क्या हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन डिवाइड रिप्रोड्यूस करते हैं. तो उसमें क्या है कि एक ही वर्म जो है वो इट डिवाइड्स इनटू और फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है, जिसके बाद क्या है ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. अब लाइक इन केस ऑफ फंजाई उसमें क्या है कि एसेक्सुअल स्पोर्स, दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स एंड एसेक्सुअल स्पोर्स. तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दे प्रोड्यूस asexually and give rise to new young ones और new hyphae जो बनाएंगे, new mycelium जो बनाएंगे. अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फर्दर कैन बी ऑफ डिफरेंट थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक फ्रॉम रनर्स, राइजोम्स, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब्स. अब लाइक हम बात करें स्ट्रॉबेरी प्लांट की. तो स्ट्रॉबेरी प्लांट में क्या है दिस इज पेरेंट प्लांट, ठीक है. तो इसमें क्या है इसमें से निकलेंगे ये रनर्स और सोलन्स. अब ये क्या है जहाँ पे भी ज़मीन को टच करेंगे वेयर एवर दे टच द सॉइल वहाँ पे क्या है दे फॉर्म अ न्यू प्लांट. और जो ये प्लांट होगा इट रिजेंबल्स दैट टू पेरेंट प्लांट, वो बिल्कुल उसी के जैसा होगा. अब जहाँ जहाँ पे वो टच करेगा सॉइल को वहाँ वहाँ पे क्या है वो न्यू डॉटर प्लांट्स बनाता जाएगा, ठीक है. दीज आर ऑल्सो नोन एज रनर प्लांट्स. अब बात करते हैं ट्यूबर्स. ट्यूबर्स में आप लोगों ने पोटैटो देखा है, पोटैटो में क्या है आईज होती हैं, अगर हम कुछ देर छोड़ देते हैं उसको तो उसमें क्या न्यू प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं. सो दीज आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स. जब हम इसको सॉइल में रखेंगे तो दिस विल प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. अनदर इज राइजोम ऑफ जिंजर. जिंजर अदरक आपने देखा है, तो अदरक में क्या अगर हम उसको सॉइल में रखेंगे तो उसमें बर्ड्स होते हैं कई सारे, तो वहाँ से क्या है नए प्लांट्स निकल आएंगे और जो रूट्स हैं दे विल फॉर्म for uptake of nutrients. Another है bulbils. So bulbils of agave ये क्या है प्लांट बॉडी के ऊपर ही हैं कि अनदर ब्रांचेस निकल आती हैं छोटी छोटी. वो क्या है जब सेपरेट होके सॉइल में जाती हैं तो वहाँ से न्यू प्लांट अराइज करती हैं. लाइक इनके सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रायोफिलम उसमें क्या होते हैं लीफ बर्ड्स होते हैं कि लीफ के ऊपर बड़े सारे बर्ड्स निकल आते हैं न्यू प्लांट्स. जब ये डिटैच होकर सॉइल पे गिरेंगे दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. And another is offset of water hyacinth. Offset is like stolons, like in case of soil plants. वहाँ पे क्या है terrestrial plants में क्या है runners होते हैं, stolons होते हैं, वो क्या है they will give rise to new plants. अब इसमें aquatic plants में क्या है कि इसमें offsets होते हैं similar to stolons. तो वो क्या है arise करके new offspring को birth देंगे. तो ये जहाँ पे ये offset निकलेगा वहाँ पे क्या है ये it will give rise to new offspring. ये क्या है फिर से बड़ा होगा और will form another offset. So these are all the means of vegetative propagation considered under asexual reproduction. So sexual reproduction we will take in next lecture. So till then you guys can go through these asexual reproductions or common reproduction in organisms.